کبھی بھی مجھے اپنے اصولوں پہ اور نظریے پہ کمپرومائز نہ کرنا پڑے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جلدی سے کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے, کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں جانے والی, یا میں نے یہ نہیں کہا جس طرح کبھی کو کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے. کوئی مضبوط نہیں ہوتا. کبھی بھی آپ کو اپنی کرسی چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے. آپ آج ہیں کل نہیں ہیں. میں مائنس ہو بھی گیا تو پارٹی سے جو بھی آئے گا وہ بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا. قومی اسمبلی میں -1 فارمولے کی گونج. وزیر اعظم عمران خان نے کہا اپوزیشن والے انہیں -1 کر کے NRO لینا چاہتے ہیں. کبھی نہیں کہا کرسی بہت مضبوط ہے. کوئی مضبوط نہیں ہوتا. آج آپ ہیں کل نہیں ہے. کرسی آنے جانے والی ہے. چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے. ملک کو سب سے زیادہ نقصان 30 سال کی سیاست نے پہنچایا ہے. ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے بڑا پلان بنایا ہوا تھا. ان کا صرف ایک ایم تھا کہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر جا کے اور وہاں ان کو ہاسٹیج رکھتے. ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں ہائی الرٹ پہ تھیں. ہم نے کم از کم 4 بڑے جو اٹیمپٹس تھے دہشت گردی کے, ان کو ہم نے ہماری ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے ہم نے پہلے ان کو پری ایمپٹ کر لیا. کوئی شک نہیں اسٹاک ایکسچینج پر حملے کا منصوبہ بھارت میں بنا. وزیر اعظم عمران خان کا قومی اسمبلی سے خطاب. بولے دہشت گردوں کا مقصد لوگوں کو یرغمال بنانا تھا. شہداء نے بہادری سے دشمنوں کا منصوبہ ناکام بنایا. ہماری ایجنسیز 4 بڑے حملے پہلے بھی روک چکیں. 2 حملے اسلام آباد کے قریب ناکام بنائے. جتنی بھی تیاری ہو مکمل روک نہیں سکتے. عمران خان کے سوا کوئی بھی منظور ہے. حکومت کو اب جانا ہوگا. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے عمران خان خود کو واحد چوائس قرار دے رہے ہیں. بدقسمتی سے وہ ملک کے نہیں PTI کے وزیر اعظم ہیں. مریم اورنگزیب نے کہا کرسی عوام سے مضبوط ہوتی ہے لیکن سلیکٹڈ وزیر اعظم یہ سمجھ نہیں سکتے. تاریخ نواز شریف کو ترقی اور خوشحالی کے لیے, عمران خان کو تباہی کے لیے یاد رکھے گی. حکومت کے جانے کا وقت آ گیا. خواجہ آصف کا کہنا ہے حکومت کے خاتمے کے لیے ہر سطح پر کوشش کریں گے. شاہد خاقان بولے حکومت اپنے اتحادیوں کا اعتماد کھو چکی ہے. عمران خان اعتماد کا ووٹ لے کر دکھائیں. ادھر اپوزیشن کا پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے اور بجٹ کے خلاف پارلیمنٹ کے باہر احتجاج. حکومت اور اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف نعرے لگائے. کورونا کیسز میں اضافے کے بعد برطانوی حکومت نے لیسٹر شائر میں لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا. سخت لاک ڈاؤن 2 ہفتوں تک جاری رہنے کا امکان. دکانیں, تعلیمی ادارے بند رہیں گے. کورونا سے متاثرہ معیشت اور سماجی ڈھانچے کو بحال کرنے کے لیے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن میدان میں آ گئے. قوم کو تعمیر نو کا نعرہ دے کر کورونا کے خلاف ڈٹ جانے کا پیغام دے دیا. وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کے نقصانات سے نکلنے کے لیے بڑے مالیاتی پیکج کا اعلان کر دیا. 5 بلین پاؤنڈز کے ترقیاتی فنڈز انفراسٹرکچر پر خرچ کیے جائیں گے. اسپتالوں, سکولز, ٹرانسپورٹ, ریلوے اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے فنڈز مختص. سعودی عرب میں پاکستانی ایگزیکٹو فورم کی جانب سے بزنس کانفرنس کا انعقاد. کاروباری افراد کے علاوہ سفارت خانہ پاکستان کے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ منسٹر کی خصوصی شرکت. پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پر شرکاء کی تفصیلی گفتگو.
न्यू यॉर्क में कोरोना की वजह से कई माह तक घरों में महदूद रहने वाले पाकिस्तानियों को सैर के लिए जाना महंगा पड़ गया। ट्रैफिक हादसे में आज़ाद कश्मीर के 3 नौजवान जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। कम्युनिटी अफसरदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ राफ़िया अमान। नाज़रीन, बुलेटिन में बात होगी इस्लामाबाद में -1 की गूंज की। यूरोप में PIA की परवाज़ों पर भी पाबंदी आयद, इस पर भी हम बात करेंगे। दुश्मन को पैगाम के कुछ करने से पहले लाख बार सोचना कि गेम सिर्फ 8 मिनट की है। पेट्रोलियम बहरान पर एक और कमेटी बन गई। विफाक और सिंध टैक्स का मामला मजीद गंभीर हो गया। लेकिन सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बली में खिताब के दौरान अपोजिशन पर कड़ी तनकीद कर डाली। कहा, अपोजिशन सिर्फ चाहती है कि किसी तरह इमरान खान पर प्रेशर डालकर -1 कराया जाए। पहले दिन से लगे हुए हैं कि हुकूमत फेल हो गई। ये नहीं जानते कि अगर -1 हो भी गया तो भी मेरी पार्टी से कोई इन्हें नहीं छोड़ेगा। जिद्दोजहद के बगैर इंसान लीडर नहीं बनता। पहले दिन से लॉकडाउन की रट लगा रखी है। ये नहीं जानते कि लॉकडाउन के दौरान बस्तियों में बसने वालों का क्या हाल हुआ है। इनका मसला ये है कि जल्दी से किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए। पहले दिन से ना इन्होंने मुझे तकरीर करने दी, पहले दिन से जी गवर्नमेंट फेल हो गई। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं हैं। इनको सबको डर लगा हुआ है कि जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी, इनके सारी जो चीजें जो इन्होंने ये जो कर्जा चढ़ाया था 30,000 अरब का, ये इनको पता है कि हमें चीजें मिल रही हैं। इसलिए जल्दी में किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए, किसी तरह इनकी चोरी बच जाए। हुकूमत को अब जाना होगा। इमरान खान के सिवा कोई भी मंजूर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी जवाब दर जवाब। ट्वीट में कहा, इमरान खान खुद को वाहिद चॉइस करार दे रहे हैं। बदकिस्मती से वो मुल्क के नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म हैं। हमें पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म चाहिए। उन्होंने कल शाम 4 बजे बिलावल हाउस लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी ऐलान कर दिया। और नाज़रीन, सियासी हालात जितने भी तल्ख हों, चाहे इस्लामाबाद में बेयकीनी के बादल छाए हों, वज़ीर आज़म अपोजिशन की किसी भी लूज बॉल को कभी भी लिफ्ट नहीं कराते। आज भी वज़ीर आज़म को एक बार फिर बिलावल भुट्टो की बारिश याद आ गई। ये इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी धुआंधार तकरीर में बिलावल भुट्टो को भी ना भूले। तंज करते हुए उनका पानी बरसने वाला जुमला याद करा दिया। पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है। ये पहला मौका नहीं, एक बार पहले भी वज़ीर आज़म मियांवाली में जलसे के दौरान बिलावल की उर्दू पर सवाल उठा चुके हैं। अगर रोजगार देना जुर्म है कि जुर्म बार बार करूंगी। खान साहब समझती हैं। आपने कहा कि आपको उर्दू सही नहीं आती। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी उर्दू बिलावल जरदारी से बेहतर है। कम अज कम आपने ये कहा कि मैं अनिल मुसरत हूँ। चले मैं आगे नहीं बात कर दूँ। सिर्फ इमरान खान या PTI नहीं, पीपल्स पार्टी के अपनी रहनुमाओं की बिलावल भुट्टो के हवाले से कई बार जबान फिसली। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह, बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह। मैं हूँगा, बिलावल होगी। अब
अपने कायद, अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, मैं क्या कह सकता हूँ कि उन्होंने खुद बिलावल भुट्टो साहब का सियासत में हुकूमत और अपोजिशन की तनकीद तो होती रहती है, लेकिन इस तरह के तंज़ो मज़ा अक्सर सियासत के गर्म माहौल में हल्की सी फुहार की मानंद लगते हैं। और मौजूदा सियासत में मुस्लिम लीग नून का किरदार भी फ्रेंडली नजर आ रहा है। मरकजी क़यादत रायवेंड, मॉडल टाउन और लंदन में खामोश है। दूसरी जानिब पार्टी रहनुमा वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए जुबानी कलामी बेताब नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाइए। नून लीग की मरकजी क़यादत खामोश। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और शाहिद खाकान अब्बासी रिंग के बाहर सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को चैलेंज करते हुए कहा कि वो ऐवान में आएं और एतमाद का वोट लेकर दिखाएं, लेकिन तहरीके अदम एतमाद पेश करने के हक की एक बार भी बात नहीं की। गैर मामूली हालात है मुल्क के अंदर। आपने देखा कि सियासी तौर पर भी कल हुकूमत ने 2 हफ्ते कोशिश की, 172 मेंबरान की पे अक्सरियत होती है कौमी असम्बली में, हुकूमत सिर्फ 160 वोट ले सकी। एतमाद हुकूमत खो चुकी है, अपने मेंबरान का, अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी है। आज हम चैलेंज करते हैं इमरान खान को, ये असम्बली में आए, एतमाद का वोट लेकर दिखाए। ख्वाजा आसिफ का एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म मुस्ताफी हो जाएं और तहरीके इंसाफ अपना ही कोई नया लीडर चुन ले। हुकूमत अपने मेंबरों पे, अपने इत्तेहादियों पे अपना कंट्रोल खो चुकी है। इन हालात में बजट का पास होना ये एक किस्म का अदम एतमाद है हुकूमत के ऊपर। कल हमने पेट्रोल के खिलाफ एक रेजोल्यूशन सबमिट किया था, जिसके ऊपर पीटीआई के एक रुकन के भी साइन थे और सारे हुकूमत के इत्तेहादियों के साइन थे। हमने वो मीडिया को भी रिलीज किया है। तो इन हालात में हुकूमत के जाने का वक्त ठहर गया है। एक तरफ नून लीग के रहनुमा मीडिया खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ किला रायवेंड ने मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर रखी है। बड़े मियाँ लंदन की ठंडी हवाओं में घूम फिर कर वक्त गुजार रहे हैं, तो दूसरी जानिब छोटे मियाँ ने खुद को क्वारंटीना में डाल रखा है। नवाज शरीफ कभी कभार अपनी इक्का दुक्का तस्वीर जारी करके पार्टी रहनुमाओं को थोड़ा बहुत हौसला दे देते हैं। मरियम नवाज सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर कभी कभार रहनुमाओं के इंतकाल पर मलाल के सिवा कुछ नहीं कर रही। मीडिया पर लड़ाई अपनी जगह, लेकिन नून लीग एक बार फिर फ्रेंडली ओपोजिशन का रोल अदा करती दिखाई दे रही है। असेंबली है ये पहलवानी का अखाड़ा। ऑपोजिशन बजट मंजूर होने की रंजिश में मार कुटाई पर उतर आई। ऐवान में पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर आपे से बाहर हो गए, अपना कोट उतारा और कहा कि लड़ना है तो आओ लड़ लें। नवीद कमर के एक्शन पर ऐवान में हंगामा बरपा हो गया। इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट ऐवान में ले आए। बोले PP चेयरमैन ने मुझे करप्ट कहा, चैलेंज दे रहा हूं, 1 रुपए की करप्शन का सबूत दे दें। पार्टी भुट्टो की एक मर्डर की पार्टी, एक लूट के निजाम की जमात और दहशत गर्दी की जमात कैसे बन गई? स्पीकर साहब, खालिद शहनशाह का मर्डर किसने किया? बिलाल शेख का मर्डर किसने किया? मुर्तजा भुट्टो की बेटी क्या कहती है? बेनजीर भुट्टो शहीद का कातिल कौन था? यह सिंध पुलिस की रिपोर्ट है, उसमें लिखा है फरहान गनी ही इज फैसिलिटेटर ऑफ ड्रग पेडलर्स और सईद गनी का भाई है। निसार मोराई वाज अपॉइंटेड एज फिशरीज चेयरमैन on the instructions of the PPP leadership. He fled from Karachi मैं आपको मौका देता हूं। March 2016 और क्या लिखा है? वाइंड अप करें, वाइंड अप करें। स्पीकर साहब, उसमें लिखा है निसार मोराई ने 3 मर्डर्स एक्सेप्ट किए। मैं आपको 2008 में रहमान डकैत के मर्डर के बाद गैंग वॉर का लीडर बन गया। अपने माइक आप दे दे, मैं आपको माइक दे रहा हूं। कादिर पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मोराई साहब, उज़ैर ये इसका माइक बंद करें साहब। ये जो तरीक़ेकार है जो मिनिस्ट्री फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग का आज रहा है, ये इस हाउस का
कोई इज्जत बढ़ा रहे हैं हम, या अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी फोटो उतारता हूँ, आओ ना फिर। नो प्लीज प्लीज प्लीज। हौसला आना चाहिए जी, सब इस तरह ना करें जी। और जी नवीद कमर साहब प्लीज, नवीद कमर साहब प्लीज। थर्ड क्लास बात हम क्या कर रहे हैं जी प्लीज सर, हमारी तरफ से जवाब, इनका नाम भी लिया है, पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी बनती है, आप प्लीज कादर पटेल को बोलने दें, ही कैन आंसर दें। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बरतानवी हुकूमत ने लेस्टरशायर में कोरोना केसेस में इजाफे के सबब एक बार फिर लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया, जो 2 हफ्तों तक जारी रहने का इम्कान है। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन अवान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में कोरोना वायरस के केसेस सामने आना शुरू हो गए। इस खतरनाक सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने लेस्टरशायर में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया। बरतानवी सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि लेस्टर में गैर जरूरी दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि तालीमी इदारों को भी जुमेरात से बंद कर दिया जाएगा। It would be very difficult to draw a clear boundary about a city like Leicester where the administrative boundary is pretty much invisible, and it's very difficult to say that, well, we'll put roadblocks up as soon as you get to the fields. It just wouldn't work. But I hope people will understand that these are pretty tough restrictions for the city, but I think the better for that, because more likely to be effective than merely just extending the present situation, more likely to be effective, and therefore more likely for us to come out of the other end more quickly. उनका मजीद कहना था कि लेस्टर शायर में 650 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट होने पर यह फैसला किया गया, लिहाजा अवाम इंतहाई मजबूरी के अलावा बाहर ना निकलें। लेस्टर शायर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद बरतानिया का 10% है। इलाके में अब तक सामने आने वाले केसेस की तादाद 3216 है, जिनमें आम शहरियों के अलावा तिब्बी अमले के अरकान भी शामिल हैं। मेयर पीटर सोलिस्बे का कहना है कि हुकूमत ने इस मरतबा पहले नाफिज शुदा लॉकडाउन से भी ज्यादा सख्त पाबंदियाँ लगाई हैं, क्योंकि कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब ये नागुज़ेर हैं। कोरोना से मुतासर मईशत और समाजी ढांचे को बहाल करने की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कौम को तामीर नौ का नारा देकर कोरोना के खिलाफ डट जाने का पैगाम दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखिए। वेस्ट मिडलैंड्स के सनती इलाके डेडले के दौरे के मौके पर वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस के खिलाफ कौम की हिम्मत बंधाई। उनका कहना था कि बरतानवी कौम कोरोना के खिलाफ कामयाबी हासिल करके फिर से सेहतयाबी के रास्ते पर गामजन हो जाएगी। बोरिस जॉनसन ने कौम को तामीर नो का नारा दिया। It also gives us a much greater chance to be radical and to do things differently, to build back better and to build back bolder. And so we will be doubling down on our strategy. We will double down on levelling up, if you can make sense of that. And when I say level up, I don't mean attacking our great companies, or I don't mean impeding the success of London, far from it, or launching some punitive raid on the wealth creators. I don't believe in tearing people down any more than I believe in tearing down statues that are part of our heritage, let alone a statue of our greatest wartime leader. I believe in building people up, giving everyone growing up in this country the opportunity they need. वेस्ट मिडलैंड्स के दौरे के मौके पर उन्होंने 5 बिलियन पाउंड की खतीर रकम से शुरू होने वाले अहम मंसूबों की फास्ट ट्रैकिंग का ऐलान किया। उनका कहना था कि इन मंसूबों से बरतानिया पहले से भी ज्यादा मुस्तहकम और मजबूत होकर सामने आएगा। कोरोना की वबा की वजह से मुल्क के कई हिस्से पीछे रह गए हैं। यह हुकूमत इस मुल्क की हालत को बेहतरीन अंदाज में तब्दील करने का विजन रखती है। And in those towns that feel left behind, we have plans to invest in their centres, new academy schools, new green buses, new broadband, and we want to make them places where people have
the confidence to stay, to raise their families, to start businesses, and not to feel that all the action is in the cities or in the metropolis. शहरियों के लिए घर तामीर करने के मंसूबे पर भी बोरिस जॉनसन ने खुलकर इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि बरतानिया यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में घरों की तामीर के हवाले से सुस्त रवि का शिकार है। Why are we so slow at building homes by comparison with other European countries? In 2018 we built 2.25 homes per 1,000 people. Germany managed 3.6, Netherlands 3.8, France 6.8. I'll tell you why. Because time is money. And the newt counting delays in our system are a massive drag on the productivity and the prosperity of this country. फिजा में नुकसानदेह गैसेस के हवाले से बोरिस जॉनसन का कहना था कि हमारा टारगेट दुनिया का पहला जहरीली गैसों से पाक मुल्क बनना है। And as part of our mission to reach net zero CO2 emissions by 2050, we should set ourselves the goal now of producing the world's first zero emission long haul passenger plane. Jet Zero. Let's do it. And though we're no longer a military superpower, we can be a science superpower. बोरिस जॉनसन ने इस मौके पर तामीराती प्रोजेक्ट का मुआयना भी किया और वर्कर से गुफ्तगू भी की। उन्होंने तामीराती मशीनरी को चलाकर गड्ढे की खुदाई भी की। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने लॉकडाउन में नरमी और मालियाती पैकेजेस का ऐलान कर दिया। 5 बिलियन पाउंड्स के तरक्याती फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने हालिया कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले मुआशी बहरान और बेरोजगारी के पेश नज़र तरक्याती मंसूबों पर मबनी 5 बिलियन पाउंड्स की खतीर रकम का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि हम अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हैं कि मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन ने किस कदर मुआशी और मुआशरती मसाइल से दोचार कर दिया है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अस्पतालों की तामीर और जदीद आलात की तनसीब के लिए 1.5 बिलियन पाउंड्स, स्कूल्स के लिए 1 बिलियन पाउंड्स के तरक्याती फंड्स रखे और तामीरात, रेलवे और सड़कों के लिए 900 मिलियन पाउंड्स का ऐलान किया। बोरिस जॉनसन का कहना था कि बरतानिया शदीद माली बहरान का शिकार है, कौम को मिलकर इससे निकलना है। लोगों को मजीद घरों में कैद नहीं रख सकते। कोरोना वबा के खतरात के साथ एहतियाती तदाबीर के साथ जिंदगी मामूल पर लानी होगी। हेल्थ साइंसेज के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने कोरोना से डेक्सामेथाजोन जिंदगी बचाने की दवा बना दी है, जो बड़ी कामयाबी है। जल्द ही इसके मस्बत नताइज आना शुरू हो जाएंगे और ये दवा और वैक्सीन मार्केट में दस्तयाब होगी, जिसकी रसाई आम आदमी तक मुमकिन बनाई जाएगी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने हालिया कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले मुआशी बहरान और बेरोजगारी के पेश नज़र तरक्याती मंसूबों पर मबनी 5 बिलियन पाउंड की खतीर रकम खर्च करने का ऐलान कर दिया है। इस रिलीफ पैकेज की तफसीलात क्या हैं, जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन अवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने जो है वो अहम तकरीर की है। उनका कहना था कि हमने बरतानिया को जो है वो दोबारा एक नए अज़म के साथ जो है वो तमीर करना है। उन्होंने 5 बिलियन पाउंड की जो खतीर रकम है आज उसका ऐलान किया है, जिसमें से उन्होंने कहा कि 1 बिलियन पाउंड जो है वो स्कूलों पर खर्च होगा, जबकि बकाया जो है वो इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ख़त्म होगी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस की वजह से जो है लोग कई महीनों से घरों के अंदर हैं, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा देर तक हम नहीं रख सकते, चूँकि लोगों को एहतियात के साथ जो है वो घरों से निकलना होगा, इस मुल्क की तरक्की के अंदर जो है वो किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जो तामीराती शोबे हैं जो कि कई महीनों से जो है वो बंद थे, उनको भी खोलने का ऐलान किया और इतनी बड़ी जो रकम का ऐलान किया इसीलिए कि ताकि बरतानिया के अंदर जो है वो दोबारा सारी सरगर्मियों का आगाज़ किया जा सके,
तामीराती शोबे से जो बहुत सारे कारोबार वाबस्ता हैं वो भी इसके साथ जो है वो चलेंगे और दोबारा बरतानिया जो है वो तरक्की की राह पर जो है वो गामजन होगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन इलाकों के अंदर कोरोना के जो है वो केसेस आ रहे हैं वहाँ पर जो है वो उस इलाके की बुनियाद पर जो है वो लॉकडाउन किया जा सकता है, जैसे कि लेस्टर के इलाके में वहाँ पर किया गया है। इसके अलावा और भी इलाकों के अंदर कई इलाकों में रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पर किया जाएंगे, लेकिन ओवरऑल उनका कहना था कि एहतियात के साथ जो है वो हमें बरतानिया को दोबारा जो है वो तरक्की की राह पर लेकर आना है और जो कोरोना वायरस की वजह से जो भी नुकसानात हो रहे थे उनका इजाले के लिए दोबारा लोगों को जो है वो बाहर निकल कर बरतानिया की तरक्की में अहम किरदार अदा करना होगा। जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर क़यादत के साथ पाकिस्तान के मौजूदा हालात, कोरोना वायरस की तेज़ी से बढ़ने की वजूहात और उसके नताइज पर ऑनलाइन नशिस्त का एहतमाम लंदन में किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी जर्मनी के सदर जाहिद अब्बास शाह और सदर हैम्बर्ग फरीद शाह ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात मिर्ज़ा रुहेल बेग की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में होने वाली ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान और बरतानिया के रहनुमा रजा खान ने किया। मीटिंग का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई में रोज बरोज कमर तोड़ इजाफा और कोरोना वायरस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के इकदामात कॉन्फ्रेंस के मौजू थे, जिस पर पार्टी की सीनियर क़यादत ने अपने अपने ख्याल का इजहार किया। बुनियादी तौर पर इंसान जो है वो सोशल एनिमल है। यूनानी तस्वुर के मुताबिक जो है समाज के माशरे की तश्कील इंसान ने की है, तो इसीलिए उसे कहा जाता है सोशल एनिमल। अब कोरोना बीमारी में उस सोशल एनिमल के ऊपर पाबंदी लगाई। आप हाथ नहीं मिला सकते, आप बगलगीर नहीं हो सकते, आप एक दूसरे के करीब जो है ब्रीथ नहीं कर सकते, तो दिस इज ए वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना। बहरतौर जैसी सूरत हाल हो उसके मुकाबिल हमें उसे फेस करना चाहिए। क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होती है। मेरी जो कोशिश है वो यही है कि आप आए और इस मुल्क को संभालें और इसको चलाएं और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, खुद बी द ओनर्स। बाहर ले जाने से तो बात नहीं बनेगी पैसे को वापस, उस पैसे को यहीं लगाएं फिर से। यहाँ पर आजिज धामरा जैसा वर्कर जो है काजी मोहम्मद का पांचा, वो भी अभी सेनेटर और पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कृष्णा कुमारी कोहली है बेचारी, उसको भी सेनेटर बनाया है। यहाँ पर वो लाल दीन है क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनको भी सेनेटर बनाया है। यहाँ पर हमारे पास मौला बख्श चांडियो एक ग्रास रूट का वर्कर, वो भी अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। सिंध तक क्यों महदूद हो गई? पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और सरहद से केपीके से और तमाम मुल्क की जो फेडरेशन की मुल्क की सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी थी। जितना जितना डिस्कस करते हैं उतना उतना हम उनको फीडबैक देते हैं, बट ठीक है जो चीजें हुई हैं हमें इनको अब आगे लेके चलना है, रादर देन के पीछे देखें और फिर क्रिटिसिज्म करें और चीजें करें। हमें चीजों को, सबको, लोगों को, नए हैं पुराने, सबको साथ लेके चलना है। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत और पार्टी के आइंदा के लाहे अमल पर इत्मीनान का इजहार किया गया और कोरोना वायरस से निमटने और उसके खात्मे के लिए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की अनथक कोशिशों को सराहा गया। मीटिंग में शिरकत करने वालों में साबिक वफाकी वजीर और इंचार्ज स्टडी सर्कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोफेसर एंडी खान, सीनियर रहनुमा तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर ताज हैदर, पीर मजरुल हक सीनियर साबिक सूबाई वजीर तालीम सिंध, सेनेटर यूसुफ बलोच, अजीज मेमन साबिक MNA, औरंगजेब बरकी सीनियर रहनुमा और मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, मियां मुनीर हांस सदर पीपल्स पार्टी गल्फ रीजन, मोहसिन बारी सदर पीपल्स पार्टी बरतानिया, नईम अराई साबिक सदर PPP जापान, सज्जाद नकवी साबिक सदर पीपल्स पार्टी जर्मनी समेत दीगर रहनुमा शामिल थे। मीटिंग का इख्तिताम पाकिस्तान की सलामती, कोरोना वायरस के खात्मे और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी और दराजी उम्र की दुआ से किया गया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम की जानिब से बिजनेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें कारोबारी अफराद के अलावा सिफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए।
سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستانی ایگزیکٹو فورم کی جانب سے منعقدہ تقریب میں سفارت خانہ کے منسٹر ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ اظہر ظاہر کے علاوہ دیگر کاروباری افراد شریک تھے، جبکہ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی پاکستانی بزنس کمیونٹی کے افراد نے آن لائن شرکت کی۔ اس موقع پر PEF کے صدر منیر احمد شاد نے کہا کہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں بطور پاکستانی ہمارا کردار پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں پھیلے پاکستانی کاروباری افراد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو بڑھائیں اور باہمی طور پر پاکستانی مصنوعات کے فروغ کے لیے کام کریں۔ دن اینیورسری تھی اور اس دن 70 ممبر تھے، اور آج آپ ایک سال بعد دیکھ لیں کہ 500 پلس ہیں اور پوری دنیا میں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم سکسیس ہیں۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ ہم KP کے پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم لاہور، کراچی، اسلام آباد میں IKEA کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر سفارت خانہ پاکستان کے منسٹر ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ اظہر ظاہر نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے نادر موقع موجود ہیں جن سے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت سرمایہ کاری کے لیے بہت مناسب اپرچونٹیز موجود ہیں۔ آپ کو اس کا علم ہوگا کہ ہم نے کافی سارے جو فری ٹریڈ ایریاز ہیں وہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اور جس کے لیے ہمارے جو وزیر صاحب ہیں رزاق داؤد صاحب، اور ہمارے عاطف بخاری صاحب، اور جو ہمارے چاروں صوبوں کے چیف منسٹر صاحبان ہیں، تو وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے فروغ کے لیے بہت سارے پر امید ہیں، اور انہوں نے ہمیں خاص طور پر اس بات کا ٹاسک دیا ہے کہ سعودی عرب سے ہمارے جو عرب دوست ہیں یا جو ہمارے پاکستان ایکسپرٹس ہیں جو کہ وہاں پر اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو ہم ان کے لیے ان کی میٹنگز کروائیں، ان کے لیے وہ اپرچونٹیز یہاں پر پرووائڈ کریں۔ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بن رہے ہیں۔ تقریب سے احسن خان، حافظ محمد شبیر، حافظ کیسر، نافع حسین اور دیگر کاروباری افراد نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ پاکستانی ایگزیکٹو فورم نے کاروباری افراد کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جس سے بزنس کمیونٹی کے درمیان تعاون اور تجربات کے تبادلے سے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کی جانب سے کراچی اسٹاک ایکسچینج حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی، جبکہ تنظیم نے شہید اہلکاروں کے لواحقین سے اظہار تعزیت بھی کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر یوسف بن احمد نے کہا ہے کہ وہ ہر قسم کے تشدد کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے دہشت گردانہ حملے کو روکنے کی کارروائی میں ہلاک شدگان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور زخمیوں کے جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ ڈاکٹر یوسف کا کہنا ہے اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے دہشت گردی کے انسداد کے لیے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ تعاون جاری رہے گا۔ نیو یارک میں کورونا کی وجہ سے کئی ماہ تک گھروں میں محدود رہنے والے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے 3 جوان سال پاکستانیوں کے لیے تفریحی سفر جان لیوا ثابت ہوا، اور کار حادثے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ اس حادثے میں دوسری کار جس سے حادثہ ہوا میں سوار 2 امریکی بھی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ میرپور آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے پاکستانی امریکن کمیونٹی کے 5 قریبی دوست، جن میں 3 قریبی عزیز بھی تھے، سکندر چودھری، افتخار نذیر، ناصر محمود، عمران رضا، فیصل چودھری، نیو یارک میں کرونا وائرس وبا کی وجہ سے گزشتہ کئی ماہ سے گھر پر موجود تھے۔ 28 جون کی صبح وہ 2 گاڑیوں میں نیو یارک اسٹیٹ کے بالائی علاقے اپ اسٹیٹ کی ایک تفریحی مقام پر گھومنے کے لیے گئے، جہاں انہوں نے پورا دن اکٹھے گزارا اور شام کو واپس بروکلین نیو یارک میں واقع اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ روٹ 79 پر گھر واپسی کے سفر کے دوران مذکورہ دوستوں کی ایک کار اوورٹیک کے دوران بروم کاؤنٹی کے علاقے میں مختلف سمت سے آنے والی پک اپ گاڑی سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے تینوں اوبر چلا کر اپنا روزگار کماتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ بلیٹن میں شامل اہم خبریں آپ جان چکے ہیں۔ مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔